Hello bachcho, let's see the question. So question says that a tangent PT is drawn to the circle x square plus y square is equals to 4 at the point P root 3 comma 1. A straight line L perpendicular to PT is a tangent to the circle x minus 3 square plus y square is equals to 1. A possible equation of L is, we have four options, we have to check which option is correct. So basically कोई L line है जो कि tangent of the circle x square plus y square is equals to 4 पे perpendicular है and इन दोनों circles की जो दोनों given circles है tangent इनकी common है. Okay, so let me take a diagram for this question first. So here we have this diagram और इस diagram में ये जो बड़ा वाला circle है it is our circle. Let me write over here. It is x square plus y square is equals to 4. Okay, and अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं x square plus y square is equals to 2 square, जहाँ से हमें पता चलता है कि इसकी रेडियस जो है वो 2 है. So let me join this point with this center. Okay, by dotted line it will be the radius. So this is the radius 2. And अगर मैं छोटे वाले सर्कल के अंदर ज्वाइन करूं, so this will be the radius, right? Now this radius will be 1 क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन है x minus 3 to the square plus y square is equals to 1. Okay, तो ये हमारे पास 1 यहाँ पर है तो इसका मतलब इसकी रेडियस 1 है एंड इसके 3,0 सेंटर है. ओके, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है इट इज x minus 3 square y minus 0 square. Okay, so 3,0 is the center and it is 0,0 क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है इट इज x minus 0 square plus y minus 0 square is equals to 2 square. Okay, and ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, राइट? एंड हमारे पास ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट जहाँ पर ये मिल रहे हैं, इट इज द पॉइंट P and the P point is root 3 comma 1. Okay, it is given in the question. Now moving further, हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करने के लिए, इट इज द इक्वेशन ऑफ L, okay, which is perpendicular to the tangent. Okay, now let me tell you the key concept for this question. So I'm writing here the key concept for this question is simply the distance formula. Okay, so अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, if line ax plus by plus c is equals to 0, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है इस तरीके से एंड वी हैव x1 कॉमा y1, कोई पॉइंट है और हमें इस x1 कॉमा y1 से इस लाइन की डिस्टेंस निकालना है. सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज पॉइंट. ओके, so distance will be d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c modulus divided by under the root a square plus b square. Okay, so मैं ये distance formula यूज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर. एंड वन मोर थिंग विच वी नो, सो लेट मी राइट द सेकेंड थिंग इज, जो हमारे पास स्लोप होता है it is nothing but the differentiation. So slope is m and m is dy by dx. Okay, so this is the another thing which we are going to use in this question. So here, moving further, first of all I'm writing the slope of tangent. Slope of tangent of x square plus y square is equals to 4. It is, on differentiating both sides, it is 2x plus 2y dy by dx is equals to 0. Okay, now from here it will be dy by dx is equals to minus x by y. Okay, now हमें at point P root 3 comma 1 पे निकालना है. So it will be dy by dx at root 3 comma 1 equals to minus root 3 by 1
from here we can clearly say that our slope means m, which is dy by dx, is minus root 3. Okay, now another thing is, हमें पता है कि if L1 and L2 are perpendicular to each other, then m1 into m2 is equals to minus 1. ओके, तो ये चीज़ हमें पता है कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, राइट? तो मैं इसी चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो एल लाइन है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर बोला था स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द पी टी। ओके, सो हेयर मूविंग फर्दर, अगर मेरे पास m ये है, सो स्लोप ऑफ l ये बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन माइनस रूट 3, राइट? क्योंकि मेरे पास माइनस रूट 3 तो स्लोप है टेंजेंट का और -1 यहाँ पर होता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग माइनस ओवर हियर. सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3. ओके, अब इस स्लोप को यूज करके जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इट इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, राइट? सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू डाल देते हैं, इट इज 1 अपॉन रूट 3 x प्लस c. ये हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं L. ओके, सो ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट x माइनस रूट 3y प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन हमें मिलेगी, राइट? लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब यही हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन L होगी, बट हमारे पास C की वैल्यू भी नहीं है, तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू यूज द की कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड यू बिफोर. द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट, द डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, सो हियर आई एम राइटिंग हियर डिस्टेंस बिटवीन माई कोऑर्डिनेट्स 3, 0, अगर मैं छोटे वाले सर्कल से बात करूँ तो, एंड x माइनस रूट 3y प्लस c इज इक्वल टू 0 इज 1 ओनली. ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पर हम फिगर में देख सकते हैं कि 3, 0 और इस लाइन के, ये जो लाइन जा रही है टेंजेंट, इनके बीच का डिस्टेंस 1 ही है. ओके, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द डिस्टेंस इज 1. सो आई एम राइटिंग हियर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला 1 equals to mod of, now a x1, so a is 1, you can see over here in this equation of line, 1 into 3, right? Now plus here we have minus root 3 into 0, so it will be completely 0. Now plus c divided by under the root a square, which is 1 square plus minus root 3 square. Okay, so I'm going to simplify this. So on further simplifying this, modulus जब खुलेगा तो ये प्लस माइनस में खुलेगा. So we can write from here it will be plus minus 1 is equals to c plus 3 divided by 2, क्योंकि नीचे की तरफ 4 हो जाएगा रूट के अंदर, which is 2. Now on simplifying this it will be c equals to, जब हम प्लस 1 लेंगे it will give me minus 1. Okay, और जब हम -1 लेंगे then it will be c equals to -5. ओके, हमारे पास ये c की दो वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन L भी दो आ सकती हैं. सो लेट मी राइट दिस थिंग ओवर हियर. सो इक्वेशन ऑफ L इज x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ तो हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस सी रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो वो +1 हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके, और इट विल बी x माइनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 5. ओके, और ये दोनों ही चीज़ें हम लिख पा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, आई एम राइटिंग हियर इट इज फ्रॉम
equation 1. Okay, so let's check the options. So here we have option A, x minus root 3y is equals to 1, which is correct. Hope you understood the solution. Thank you.